Good morning, everyone. What had we discussed in the previous class? We had discussed the treatment of appropriations. Now, today we will discuss commission to a partner, interest on capital, and interest on drawings. Is this screen visible? Yes, sir. Okay. So partner's commission, if a partner is to get a commission on the profits, you remember in class 11th we had studied commission to a manager as a percentage of profit. Do you remember that? Yes, sir. हाँ, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती थी, कमीशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड कमीशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई हियर. If a partner is to get commission on profit before charging commission, suppose after all expenses, but before charging partner's commission, the profit is, let us say, 22,000, and a partner is to get commission at the rate of 10% of profit before commission. So how much will be the commission? 2200. 2200. Simple. Profit before commission into commission rate upon 100. ठीक है, सिंपल. अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं हो वेदर कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन or on profit after charging such commission, by default we take it before charging commission only. But if partner's commission on profit is after charging commission, means partner is to get commission calculated on profits after charging such commission. ठीक है, suppose same example हम continue करें, profit is 22,000 before commission, but the question says commission should be 10% of profit after charging such commission. तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? 10 upon 110 into 22,000, which is 2,000. वेरी गुड. ठीक है, सो द फॉर्मूला इज प्रॉफिट इनटू कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस कमीशन रेट. ये लिख लो. And then write this illustration question. Preeti and Shalini are partners. Calculate commission in following cases. तीनों केस लिख लो ये. Written all the three cases? Yes, sir. Okay, read the first one. Preeti is entitled to 10% commission on profit before charging commission, and Shalini is entitled to 10% commission on profit after charging all commissions. Profit is rupees 1,10,000. ठीक है, profit is 1,10,000. As I told you, if nothing is mentioned, profit अगर दिया है तो हम उसे before commission profit ही मानेंगे. ठीक है. Now Preeti is entitled to 10% commission on profit before charging commission. So 10% of 1,10,000. which comes out to be 11,000. 11,000. अब ये 11 शालिनी को जो कमीशन देना है वो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस. तो पहले तो प्रीति का कमीशन लेस कर देते हैं प्रॉफिट में से. 1,10,000 में से 11,000 जब हम लेस कर देंगे कितना बचेगा? 99,000. 99,000. अब शालिनी को मिलना है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, मतलब अपना खुद का कमीशन भी लेस करने के बाद. सो कैलकुलेशन विल बी हाउ विल बी कैलकुलेटेड? 10 upon 110 into 99,000, 9,000.
Very good. So write down case 1. Preeti's commission will be 10% of 1,10,000. That is rupees 11,000. Profit remaining after Preeti's commission is rupees 99,000. So Shalini's commission will be 10 upon 110 of 99,000, which comes out to rupees 9,000. Yes, sir. Now case 2. Both partners to get 10% commission on profits after charging all commissions. And the profit given before commission is 1,20,000. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 Both- upon 110 into Both partners to get 10% commission on profit after charging all commissions. इसका मतलब अगर profit after charging all commissions is 100, then both partners will get 10 each. Yes or no? yes, sir. That means profit before Yes, sir. commission of both must have been how much? If profit after commission of both is 100, commission of each is 10, that means profit before commission must have been 80. प्रॉफिट कमीशन लेस करने के बाद, दोनों का 10-10 रुपए कमीशन लेस करने के बाद अगर प्रॉफिट 100 है तो कमीशन लेस करने से पहले प्रॉफिट कितना One- रहा होगा? 120. यस, ठीक है, 1. यस. इसका मतलब प्रॉफिट अब हम कैसे निकालेंगे कमीशन? 10 अपॉन 120. किसका? 1,20,000 का. तो लिखो केस 2, लेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बी 100. Then both partners' commission will be 10 each, and profit before commission will be 120. So each partner's commission will be 10 upon 120 into 1,20,000 equals rupees 10,000. So both Preeti and Shalini will get rupees 10,000 commission each. Yes, sir. Now case 3. Preeti to get 5% commission on profit after charging all commissions, and Shalini to get 10% commission on profit after charging all commissions. अब कैसे करेंगे? Preeti 5 upon 105 into 2,30,000. 5% commission on profit after charging all commissions, और शालिनी का भी on profit after charging all commissions. मतलब if profit after charging all commissions is 100, then Preeti's commission is 5 rupees and Shalini's commission is 10 rupees. ठीक है, अब रिवर्स कैलकुलेशन करो. अगर दोनों का कमीशन लेस करने के बाद प्रॉफिट 100 है, जिसमें से कितना कितना लेस हुआ है? प्रीति का 5 लेस हुआ है, शालिनी का कमीशन 10 लेस हुआ है. तो बिफोर दीज टू कमीशंस हाउ मच मस्ट हैव बीन द प्रॉफिट अमाउंट? 115. Yes, so commission will be 5 upon 115 and 10 upon 115 of 2,30,000. Let profit after commission be 100. Then Preeti's commission will be 5 and Shalini's commission will be 10. And profit before commission will be 115. So
Preeti's commission will be 5 upon 115 into 2,30,000 rupees 10,000. Yes, sir. And Shalini's commission will be 10 upon 115 into 2,30,000, which is rupees 20,000. Yes, sir. Is this concept clear? Yes, sir. Okay. Now we come to interest on capital. Interest on capital is calculated on opening capital. ये लिखते जाओ साथ साथ. If opening capital is directly given in the question, then we will simply calculate interest on that amount. Otherwise, we can calculate the opening capital from the closing capital. How? Opening capital से closing capital तक आते आते क्या changes हुए होंगे? सारी appropriations हुई होंगी. Yes. उनको एडिशनल reverse कर. कैपिटल, अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी पार्टनर्स ने, तो वो क्या हुई होगी ओपनिंग कैपिटल में? Add. तो अब हम रिवर्स चलेंगे तो लेस कर देंगे उसे क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए. विड्रॉल्स और ड्रॉइंग्स क्या हुई Yes. होंगी पहले? पहले लेस हुई होंगी, अब ऐड हो जाएंगी. अब ऐड हो जाएंगी. ठीक है. सो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ये लिखते जाओ, प्लस विड्रॉल्स प्लस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ये तीन चीजें अगर दी होंगी तो ऐड होंगी क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए. और लेस क्या क्या होगा? माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स रेम्यूनरेशन और पार्टनर्स कमीशन, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो माइनस प्रॉफिट शेयर. क्योंकि ये चीजें पहले ऐड हुई होंगी, तो आप रिवर्स चलते हुए लेस कर देंगे. Yes, sir. अगर क्वेश्चन में हमें दिया हो कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? सर कोई भी appropriation वाला, जैसे interest on drawings, interest on capital, partner salary, वो तो फिर फिक्स्ड में करंट अकाउंट में होती है ना उसकी एडजस्टमेंट्स. यस. तो सिर्फ दो एडजस्टमेंट होंगी, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल्स माइनस एडिशनल कैपिटल. क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीजों की पोस्टिंग आती है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल. सो इन दैट केस ओपनिंग कैपिटल विल बी क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल्स माइनस एडिशनल कैपिटल. यस सर. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्रॉइंग्स आर कंसिडर्ड while calculating opening capital but ignored while calculating interest on capital. Yes sir. Let us understand what this means. यहां पे देखो, जो हमने फॉर्मूला लिखा ओपनिंग कैपिटल का, इसमें ड्रॉइंग्स को भी ऐड किया है ना? Yes sir. तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जब निकाल रहे हैं तब ड्रॉइंग्स को करना है एडजस्ट ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए. लेकिन एक बार ओपनिंग कैपिटल आ गई तो उस पर जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो ड्रॉइंग्स को इग्नोर कर देंगे. ठीक है. सपोज ईयर के बिगिनिंग में कैपिटल थी 1 लाख ओपनिंग कैपिटल. ठीक है. मिड ईयर में 20,000 ड्रॉइंग्स हो गई, तो हम ड्रॉइंग्स 20,000 को इग्नोर करेंगे, पूरे 1 लाख की ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे. इज इट क्लियर? Yes sir. सेकेंड पॉइंट लिखो, विड्रॉल्स एंड एडिशनल कैपिटल आर कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Yes sir. अब इसका क्या मतलब हुआ?
ड्रॉइंग्स को तो हम इग्नोर कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हुए, लेकिन विड्रॉल को और एडिशनल कैपिटल को कंसिडर करेंगे। अब पहले जो हमने एग्जांपल लिया उसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ईयर के बिगनिंग में ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख, मिड ईयर में 20,000 विड्रॉल हो गया, ड्रॉइंग्स नहीं विड्रॉल। तो अब क्या फर्क पड़ेगा, हम 1 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे फर्स्ट 6 मंथ्स का, उसके बाद अब कैपिटल रह गई कितनी, 80,000। 80,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा रिमेनिंग 6 मंथ्स का। तो विड्रॉल को इस तरह से कंसिडर करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हुए। क्लियर? सर ड्राइंग्स तो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है और विड्रॉल और जो एडिशनल कैपिटल होता है वो कैपिटल को इफेक्ट करता है। विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल, यस, विड्रॉल इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्रॉइंग मतलब छोटे मोटे जो ड्रॉइंग्स होती रहती हैं रूटीन में। विड्रॉल मतलब जो पर्पज ही जिसका कैपिटल को कम करने के पर्पज से जो विड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन की वर्डिंग से ही पता चलेगा। क्वेश्चन में अगर ड्राइंग्स लिखा है या विड्रॉल लिखा है उसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रीट किया है, करना है। ठीक है, ओके सर। इसी तरह से अगर ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख, मिड ईयर में 20,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो अब कैलकुलेशन कैसे होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? 1 लाख पे 6 मंथ्स के लिए और फिर 1,20,000 के लिए रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन लिखो, इलस्ट्रेशन 3, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट 20% पर एनम फॉर द ईयर 2019-20 फ्रॉम फॉलोइंग डिटेल्स। ये डिटेल्स लिख लो, पर्टिकुलर्स, और दो पार्टनर्स हैं सक्षम एंड नीलिमा। क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, drawings during the year is given, withdrawal is given, additional capital is given, share of loss posted to capital is given। लिख लो ये पूरा पहले। Yes, sir. Okay. Now, what will be our first step? ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे पहले। वेरी गुड, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो उसके लिए टेबल बना लो इस तरह से, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, सक्षम, नीलिमा। अराउंड 6-7 लाइंस का फॉर्मेट बना लो ये। Yes, sir. Now we will begin with closing capital, which is given to us. Capital on 31st March 2020. Saksham 20,40,000, Nilima 20 lakh. Yes, sir. अब ये जो ड्राइंग्स दी हुई हैं इसको क्या करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में? Add. Very good. So add drawings during the year plus 20,000 plus 40,000. Yes, sir. Then what about this withdrawal 50,000? Add कर देंगे नीलिमा में भी तो। Yes. Withdrawal on 1st October, नीलिमा के कॉलम में plus 50,000. Yes, sir. एडिशनल कैपिटल का क्या करना है? लेस कर देंगे सक्षम में से। यस, और शेयर ऑफ लॉस का क्या करना है? ऐड कर देंगे। यस, क्योंकि प्रॉफिट होता तो लेस करते, लेकिन शेयर ऑफ लॉस है जो कि लेस हुआ होगा पहले, तो अब ऐड बैक करना है। ठीक है, तो पहले ऐड वाली आइटम्स हम लिख रहे हैं तो लॉस पहले लिख लेते हैं। शेयर ऑफ लॉस पोस्टेड टू कैपिटल प्लस 10,000 प्लस 10,000। Yes, sir.
एंड देन लेस क्या करना है, एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जनवरी जो सक्षम ने इंट्रोड्यूस की है, तो -70,000 सक्षम के कॉलम में, एंड वी गेट कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, सक्षम की 20 लाख, नीलिमा की 30 लाख। यस सर। अब एक इस तरह का टेबल बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पहले सक्षम के लिए बनाएंगे, फिर नीलिमा के लिए बनाएंगे। पीरियड सर नीलिमा में 21 लाख नहीं आएगा? किसमें? नीलिमा में 20 लाख प्लस 1 लाख। 20 लाख प्लस ये देखो 40 और 50 90,000 ऐड हुआ, और फिर 10,000 और, यानी 1 लाख। हाँ ठीक है, 21 लाख होना चाहिए ये, राइट राइट राइट, मेक दिस करेक्शन, इट शुड बी 21 लाख। बन गया, ये टेबल बन गया सक्षम के लिए। यस सर। नीलिमा की ओपनिंग कैपिटल आ रही है 21 लाख, ये हमने करेक्शन कर ली। अब सक्षम के केस में देखो चेंज कब हो रहा है, 1 जनवरी को वो एडिशनल कैपिटल ला रहा है, मतलब दिसंबर तक कोई चेंज नहीं है। तो पीरियड में पहले लिखेंगे अप्रैल टू दिसंबर, कितनी कैपिटल रही उसकी, 20 लाख। तो 20 Yes, लाख sir. का 20% 4 लाख, लेकिन 9 मंथ्स के लिए निकालना है तो इंटू 9/12, इंटरेस्ट कम्स आउट टू 3 लाख रुपीज। Yes, sir. देन जनवरी टू मार्च कैपिटल इसकी हो गई 20,70,000, क्योंकि 70,000 एडिशनल कैपिटल ले आया। तो 20,70,000 का 20% इज 4,14,000, और वो निकालना है हमें 3 मंथ्स के लिए, तो इंटू 3/12, 1,03,500। Yes, sir. तो दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दो, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 4,03,500 फॉर सक्षम। अब इसी तरह का टेबल नीलिमा के लिए बना लो। Yes, sir. इसका चेंज कब हो रहा है, विड्रॉल ऑन 1 अक्टूबर, मतलब सितंबर तक सेम कैपिटल चल रही है 21 लाख। ठीक है, सो अप्रैल टू सितंबर कैपिटल इज 21 लाख। 21 लाख का 20% 4,20,000, but for 6 months, so into 6/12, that is 2,10,000. Yes, sir. 1 October को she withdrew 50,000, so now remaining capital is 20,50,000 from October to March. 20,50,000 का 20% 4,10,000 for 6 half. months, so into 6/12 is 2,05,000. 2,05,000। तो इसका इंटरेस्ट नीलिमा का हो गया टोटल 4,15,000। क्लियर? Yes, sir. Interest on capital is clear? Yes, sir. Okay, so now we'll move on to interest on drawings. इसमें लिखो, drawings are considered while calculating interest on drawings, but withdrawals are ignored. Yes, sir. इसमें
ऑपोजिट है। इंटरेस्ट और कैपिटल में क्या था, ड्रॉइंग्स को इग्नोर कर देते हैं, विड्रॉल को कंसिडर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में ऑपोजिट है, ड्रॉइंग्स को कंसिडर करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए, विड्रॉल को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो जितना हमें ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया हो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, अगर विड्रॉल दिया हुआ है तो विड्रॉल पे नहीं निकालना। Yes, sir. Okay. Now, first method of calculating interest on drawings is simple method. ये लिख लो और इसका फॉर्मूला लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल्स समेशन, ये समेशन का साइन होता है, समेशन विद इन ब्रैकेट्स MA इंटू ROI अपॉन 100 इंटू अपॉन 12। इसमें MA क्या है, मंथली अमाउंट ड्रॉन, और M क्या है, मंथ्स रिमेनिंग। So monthly amount drawn into rate of interest upon 100 into months remaining upon 12. Yes, sir. अब ये लिखो illustration 4, calculate interest on drawings at 15% per annum for the year 2019-20 if a partner drew as follows. उसकी ड्रॉइंग्स दे रखी हैं जून 1 2000, जुलाई 1 4000, अक्टूबर 1 2000, दिसंबर 1 5000 एंड जनवरी 1 6000। आगे दो कॉलम और बना लो, कैलकुलेशन और इंटरेस्ट। Yes, sir. अब जून 1 को जो उसने पहली ड्राइंग्स की उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, 2000 इंटू रेट क्या है 15%, सो 15 अपॉन 100। हाउ मेनी मंथ्स आर रिमेनिंग, जून 1 से 31 मार्च तक 10 मंथ्स आर रिमेनिंग, सो इंटू 10/12, ये आ गई वैल्यू 250। Yes, sir. सिमिलरली 4000 की क्या कैलकुलेशन होगी, 4000 into 15/100 into 9/12. 9/12 बिकॉज 9 मंथ्स आर रिमेनिंग, जुलाई 1 से अमाउंट आ गया ये 450। Yes, sir. Next one will be 2000 into 15/100 into 6/12, 150. very good. Yes, sir. Then next one will be 5000 into 15/100 into 4/12, 250. very good, लिख लो। Yes, sir. Next one 6000 into 15/100 into 3/12, 225. excellent। और अब इन सारे इंटरेस्ट के अमाउंट्स को ऐड कर दो, आ गया 1325। लिख लिया? Yes, sir. Now in this illustration if you notice carefully कुछ रेपिटेशन हो रहे हैं, हर बार कैलकुलेशन में 15/100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर बार कैलकुलेशन में 12 से डिवाइड हो रहा है ना? Yes, sir. इन कैलकुलेशंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। लिखो प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब ये देखो हमने ऊपर लिखा हुआ था समेशन में मंथली अमाउंट इंटू ROI/100 इंटू मंथ्स रिमेनिंग अपॉन 12।
ROI अपॉन 100 क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर ले जाते हैं। इसी तरह से डिवाइडेड बाय 12 को भी हम ब्रैकेट के बाहर ले जाते हैं, ठीक है। तो हर बार समेशन करने के निकाल के समेशन करने के बजाय इसे एक ही बार बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों को जब हम ब्रैकेट के बाहर ले गए तो अब हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल समेशन, ब्रैकेट के अंदर दो चीजें रह गई, मंथली अमाउंट ड्रॉन इनटू मंथ्स रिमेनिंग, और ब्रैकेट के बाहर चला गया इनटू ROI बाय 100 इनटू 1 बाय 12। यस सर। अब हम सेम डेटा से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालेंगे प्रोडक्ट मेथड से। तो एक बार फिर से ये टेबल बना लो। यस सर। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव जस्ट टू, ये जो कॉलम है इनकी हेडिंग चेंज हो जाएगी, बाकी दो जो थे लास्ट टू कॉलम्स, पहले कॉलम की हेडिंग हो जाएगी मंथ्स रिमेनिंग और लास्ट कॉलम की हेडिंग हो जाएगी प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि मंथली अमाउंट तो हमें अमाउंट कॉलम में दिया ही हुआ है। मंथ्स रिमेनिंग, जून 1 वाली ड्राइंग्स के बाद मंथ्स रिमेनिंग कितने हैं? 10 months। 10, और 10 से 2000 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो मंथली अमाउंट ड्रॉन इनटू मंथ्स रिमेनिंग जो ब्रैकेट के अंदर है, तो 2000 इंटू 10 प्रोडक्ट आ गया 20,000। सिमिलरली नेक्स्ट वन 4,000 into 9, 36,000। वेरी गुड, 4,000, 9 months remaining, product 36,000. Next one 2,000 for 6 months, 12,000। very good, 6 months remaining and product is 12,000. Next 5,000 into 4, 20,000। 5,000, 4 months remaining, so 20,000. Very good. Last 6,000, 3 months remaining, 18,000। 3 months remaining, 18,000. अब हम इसका समेशन करेंगे, किसका? प्रोडक्ट का, मंथली अमाउंट ड्रॉन इनटू मंथ्स रिमेनिंग जो हमने प्रोडक्ट निकाला है, इसका टोटल आया 1,06,000। अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डाल देंगे। फॉर्मूला क्या है? समेशन MA इंटू M, मतलब 1,06,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल्स 1,66,000 इंटू 15/100 इंटू 1/12। ये अब हम एक ही बार करेंगे, इंटू 15/100 इंटू 1/12, और कैलकुलेट करके देखोगे आप सेम अमाउंट आ जाएगा, ₹1325। यस सर। यहां तक क्लियर? यस सर। एनी डाउट अप टू हियर? नो सर। Okay, we'll stop over here for today. Any doubts, anyone? No sir। Okay, thank you then. Thank you sir।